بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو کسی کو پرپوز کرنے سے پہلے ہمیں اس شخص میں دیکھنی چاہیے، اور وہ ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم کسی شخص کو پیغام بھیج سکتے ہیں شادی کے لیے۔ لڑکا یا لڑکی دونوں کے تعلق سے یہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ لڑکے کو کون سی خوبیاں لڑکی میں دیکھنی چاہیے اور لڑکی کو کون سی خوبیاں لڑکے کے اندر دیکھنا چاہیے، یہ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے، بعض صفات کا ذکر کریں گے، بعض خوبیوں کا ذکر کریں گے، اور انسان کی زندگی پر ان خوبیوں کا کیا اثر ہوتا ہے، اور ہیپی میرج لائف کے لیے کیوں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو آگے چل کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ اگر کسی کو پرپوز کرتے ہیں یا کسی کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کا مسئلہ ہے، جسے عربی زبان میں النظر الی المخطوبہ کہتے ہیں، کہ جس سے منگنی کرنا چاہتے ہیں، جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کو شادی سے پہلے دیکھ لیا جائے۔ یہ مسئلہ آج نہیں ذکر کرنے والا ہوں میں، آگے چل کر کے یہ مسئلہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے کئی درس میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ جو نکاح کے مسائل ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے، بہت واضح ہونی چاہیے، ہر ایک کے سامنے جو ہے جو مسائل ہیں نا یہ بہت کلیئر انداز میں آنے چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اسلام نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے شادی سے پہلے، اور لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے۔ کیوں یہ جائز قرار دیا ہے؟ حالانکہ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ نکاح سے پہلے یہ جائز اس لیے قرار دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ تاکہ تمہاری نکاح کا یہ بندھن، یہ جو نکاح ہو رہا ہے، یہ نکاح باقی رہے،
ऐसा ना हो कि देखने के बाद, निकाह से पहले तो देखे नहीं थे, और देखने के बाद पसंद नहीं आई या लड़का पसंद नहीं आया, उसकी वजह से ही आपस में ताल्लुकात खराब हो, तलाक और खुला की नौबत आ जाए। इस्लाम ये नहीं चाहता ऐसा। इस्लाम क्या चाहता है कि जब ये अक़्द हो रहा है तो शुरू से हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये निकाह बाकी रहे, हमेशा ये निकाह रहे। इसके लिए ही कुछ चीजें हैं जिसकी हिदायत हमें दी गई हैं। इसी के लिए ये गाइडलाइन है जो है इस्लाम में, जिस गाइडलाइन का हम जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट है मेरे भाइयों ये, कि हमें क्या खूबियां देख करके पैगाम देना चाहिए। ये वो खूबियां हैं, ये वो सिफात हैं जिसकी वजह से अगर हम इसे जो है प्रिफर करते हैं, हम जो है इसको जो है तरजीह देते हैं, और इन सब को देख करके इंतखाब करते हैं, चूज करते हैं लड़के को या लड़की को, तो इससे क्या होता है कि बाद में हमारी जो मैरिज लाइफ होगी वो हैप्पी मैरिज लाइफ होगी, बड़ी खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी होगी। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ये है उसका तो मेन मकसद यही है, और उसी के लिए ये बातें आपके सामने पेश की जा रही है। इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिनका अंदाजा लगाना शादी से पहले एक मुश्किल अम्र हो सकता है, यानी ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, ये हम मानते हैं। हम अपने तौर पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश हमें करनी चाहिए। कोई भी चीज आप तलाश करते हैं, एक मामूली चीज खरीदनी होती है मार्केट से, तो आप क्या करते हैं, 10 दुकानें जो है तलाश करते हैं, 10 दुकानों में उसे तलाश करते हैं, चाहते हैं कि आपको अच्छी चीज मिले, जबकि पूरी जिंदगी से उसका ताल्लुक नहीं होता है। और ये शादीशुदा जिंदगी मेरे भाइयों, ये मैरिज लाइफ, ये तो आदमी इसी नियत से करता है कि उसका निकाह ये बाकी रहे और दोनों बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजारे हैं, बड़ी जो है जिंदगी बड़ी खुश खुर्रम बसर हो, ये उसकी ख्वाहिश है। और क्या है, इससे ताल्लुक औलाद की तरबियत का भी है, तो इसका हमें कितना ख्याल करना चाहिए, आप सोच सकते हैं इस चीज को। इसलिए हम अपनी तौर पर कोशिश करें। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो चाहते थे, जिस तरह की बीवी चाहते थे और जिस तरह का हमने सोच करके निकाह किया वैसी बीवी हमें नहीं मिली, अगर मामला ऐसा है मेरे भाई, तो ऐसे मौके पर क्या होता है, कहते हैं आप अपने प्रेजेंट लाइफ में रहो, आप प्रेजेंट जो कंडीशन है उसे कबूल भी करो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर इंसान जो चाहता है 100% उसे मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। फिर तो जो है उसी पर गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हद तक जो है कि किस हद तक हम गुजारा कर सकते हैं वो देख करके गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम जो ये सिफात अभी बयान करने वाले हैं ना, ये हमें शादी से पहले देखने होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है मेरे भाइयों की शादी के बाद बात जाहिर हो रही है, पहले अंदाजा नहीं हुआ, पहले तो अच्छा समझ रहे थे, लेकिन शादी के बाद जो है कुछ गिरहें थी अब जो खुल रही हैं, कुछ जो है चीजें थी जिन पर समझिए धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, अब वो साफ होकर के क्लियर होकर के चीजें सामने आ रही हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे मौके पर क्या है, बास चीजों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अगर बर्दाश्त करके जिंदगी को गुजार सकते हैं तो गुजार लीजिए, ये होता है उस वक्त। तो अभी हम जो है क्या है, शादी के लिए इंतखाब से पहले की ये बातें कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है जो देखनी चाहिए। आज एक बात आपके सामने जो है पेश कर रहा हूं वो ये है कि आप जिस लड़की का इंतखाब कर रहे हैं शादी के लिए, अगर मालूम कर सकते हैं तो मालूम कर लीजिए कि इस लड़की का मिजाज निगेटिव है या पॉजिटिव, उसकी थिंकिंग जो है निगेटिव या पॉजिटिव।
اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز پازیٹیو انداز سے لیتی ہے، مثبت انداز سے لیتی ہے یا منفی انداز سے لیتی ہے. کہتے ہیں کہ منفی سوچ رکھتی ہے یا مثبت سوچ رکھتی ہے، نگیٹو تھنکنگ ہے اس کی یا پازیٹیو تھنکنگ ہے. یہ چیز میرے بھائیوں زندگی کے لیے بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. اور میرج لائف کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک ساتھ رہتے ہیں تو اگر کوئی نگیٹو مائنڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں. آپ کچھ اچھا کرنے جائیں گے، جو آپ اچھا کرنے جائیں گے ہمیشہ اسے غلط مانا، نگیٹو سوچ ہے نا، نگیٹو مائنڈیڈ ہے نا، تو ہمیشہ اسے غلط لیں گے. کہاں تک آپ جو ہے کہتے پھریں گے، کہاں تک یہ اپنی طرف سے صفائی دیتے رہیں گے، میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. بہت مشکل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا. تو یہ لڑکی کے تعلق سے بھی چیز ہو سکتی ہے، لڑکے کے تعلق سے بھی ہو سکتی ہے. انداز، سوچ کا انداز کیسا ہے. آپ آج کل بہت سنتے رہتے ہیں یہ لفظ، بی پازیٹیو، بی پازیٹیو، بی پازیٹیو. ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اسلام میں ایسا کہاں ہے، آپ خواہ یہ باتیں کہاں سے پیش کر. میرے بھائیوں، جس دین کی بات کہی گئی ہے کہ دین والے کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو، جو ہے جو بات حدیث میں ہے، جو اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے، تو یہ مثبت اور منفی سوچ، اس کے تعلق سے بھی ہمارے دین میں گائیڈ لائن موجود ہے، ہدایات موجود ہے میرے اور میری بہن. جو عورت دیندار ہوگی، یاد رکھیے اسے کیا ہونا چاہیے، پازیٹیو. اسے ہونا چاہیے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کی مالک ہو. لڑکا بھی پازیٹیو تھنکنگ کا مالک ہو. اسلام پازیٹیو تھنکنگ کو کہتا ہے کہ آپ اسے اختیار کرو، اور کہتا ہے کہ نگیٹو تھنکنگ چھوڑ دو آپ. اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. اب چونکہ ہماری یہ کلاس کوئی جو ہے اس کی کلاس تو ہے نہیں جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں. اگر اس کی کلاس ہوتی تو ہم آپ کو سمجھاتے، وہ حدیثیں پیش کرتے، وہ مسائل پیش کرتے جہاں اسلام ہمیں اسی جو ہے پازیٹیو تھنکنگ کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ ہم آپ کے سامنے واضح کرتے. ایک دو مثالیں پھر بھی پیش کروں گا، کیونکہ جب ہم نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہم کہتے ہیں بی پازیٹیو، جو سمجھتے ہیں آپ کی آج کل کے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں. اور آج جو ہے ڈاکٹر، خاص طریقے سے جو ہے سائیکالوجی کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، سائیکسٹ جو کہتے ہیں آپ کو شاید جو ہے انگلش میں، تو وہ جو ماہر ہوتے ہیں وہ جو یہ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ آدمی اگر پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے تو اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور نگیٹو تھنکنگ رکھنے والا یہ چلتے چلتے سائیکو بن جاتا ہے، یعنی جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ ایسا شخص جو ہے، اور ایسے شخص کا علاج پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے شروع سے ہی ایسے لوگوں کو جو ہے پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر کے آنا بہت ضروری ہوتا ہے. کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے اور پازیٹیو بن کے رہنا بھی چاہیے. دیکھیے میں اب آپ کو بتاؤں اسلام میں کیا ہے. ایک دو مثالیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ جو ہے دوں گا. اسلام میں یہ ہے کہ آپ نیک پھال لے سکتے ہیں، برے پھال نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے. نیک پھال لینا جائز ہے اور برا پھال لینا جائز نہیں ہے. یہ نیک پھال لینا کیوں جائز ہے، برا پھال لینا کیوں جائز نہیں ہے، سوال یہی آتا ہے. کیوں ایک چیز جائز ہے، کیوں ایک چیز جائز نہیں، جبکہ دونوں کا تعلق فیوچر سے ہی ہے. یہ نیک پھال لینا، برے پھال لینا، کیا مطلب ہے اس کا، وہ تھوڑا مثال سے سمجھا دو. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز فیوچر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ کے سامنے کچھ اچھا جو ہے تو آپ نے اس سے یہ کیا، اچھا یہ ہے
تو انشاءاللہ جلدی یہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔ سہیل جو ہے یا سہل نام میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے مجھے اس وقت، کہ جو ہے ایک شخص جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، جو بات چیت چل رہی تھی تو جو ہے صلح کے لیے اس میں وہ آ رہے تھے، تو دور سے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کا نام چونکہ سہل ہے یا سہیل ہے، تو ان کے نام میں چونکہ سہل کا یہ لفظ پایا جاتا ہے نا، تو سہل عربی میں کہتے ہیں ایزی، یعنی کوئی چیز بہت آسان ہو تو اس کو عربی میں سہل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فال لیا۔ نیک فال کیا لیا؟ کہ اب معاملہ جو صلح کی بات چل رہی ہے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ یہ آسان ہونا نہ ہونا اس کا تعلق فیوچر سے ہے، سیم وہی مسئلہ ہے، فیوچر سے ہے اس کا تعلق، لیکن آپ نے کہا آسان ہو جائے گا، کیوں؟ یہ سہل یا سہیل کے نام سے جو آپ نے نیک فال دیا، یہ کیوں ہے؟ یہ جائز قرار دیا، کیوں جائز قرار دیا؟ کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ اصل میں پازیٹیو تھنکنگ سے تعلق رکھتی ہے چیز، اور اسلام چاہتا ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ اس کے مقابلے میں برا فال لینا جائز نہیں۔ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے رہتے ہیں کہ گھر سے نکل رہے تھے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ایک بات جو ہے لوگ یہاں پہ بہت کہتے رہتے ہیں، تو وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب وہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کیا لیتے ہیں؟ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، چھینک آ گئی، ایسا ہو گیا، کچھ نہ کچھ جو ہے ایسے۔ یہ جو تھنکنگ ہے نا، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، اس کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا، اسی کو برا فال کہتے ہیں۔ برے فال جو ہے لینے کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ کیوں نہیں جائے؟ حالانکہ اس کا تعلق بھی فیوچر سے ہی ہے کہ آپ جائیں گے تو کیا ہے، آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، کوئی جو ہے آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ برا ہو جائے گا، یہ بھی فیوچر ہے۔ اچھا ہو جائے گا وہ بھی تو فیوچر ہی ہے، لیکن وہ جائز قرار دیا گیا کیونکہ آپ اس میں کیا رکھتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، اور اس میں آپ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں جب جو ہے برا فال لیتے ہیں۔ تو پازیٹیو تھنکنگ کو ہی اسلام آگے بڑھاتا ہے، اس کو جائز قرار دیتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کو صحیح نہیں قرار دیتا۔ ایک دوسری مثال حسن ظن سوء ظن، بہت سنتے رہتے ہیں۔ حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھا گمان رکھو، کسی کے بارے میں اچھا سوچو، اور سوء ظن کیا ہے؟ برا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا۔ تو یہ اچھا سوچنا برا سوچنا اسلام کس کا حکم دیتا ہے؟ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ آپ اچھا گمان کرو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا سوچو، اچھا گمان کرو۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے اور وہاں آپ کو یہ ہے کہ آپ اچھا بھی سمجھ سکتے ہیں برا بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو، تو آپ اس کو اچھے پر سمجھو، اچھا گمان رکھو۔ کیوں اچھا؟ یہ اچھے گمان کی بات کہی کیونکہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ اور برے گمان سے کیوں منع کیا گیا؟ حدیث میں آتا ہے ایاکم والظن، ظن سے بچو، یعنی برے گمان سے بچو۔ قرآن میں یہ بات بھی ہے، قرآن میں بھی یہ حکم ہے۔ کیا ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر بھی یہ بیان ہے کہ یہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں ان سے بچا جائے۔ یہ بدگمانیاں، اس سے بچنے کی جو بات کہی گئی ہے، یہ میرے بھائیوں یہی نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، یہ ہمارے دین کا ہی حصہ ہے۔ تو انسانوں کے اندر بھی ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی جو تھنکنگ ہے، سوچ ہے نا، یہ پازیٹیو ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی نیگیٹو۔ کچھ ایسی تربیت ان کی ہوتی رہتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ نیگیٹو سوچ ان کی بن جاتی ہے، ہمیشہ ہر چیز کو کیا ہے؟ نیگیٹو انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسی سوچ یہ ہیلتھی تھنکنگ نہیں کہلاتی ہے، یہ صحیح تھنکنگ نہیں، اور اس کی وجہ سے سماج میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، سوسائٹی میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے، اور ایک ساتھ زندگی گزارنے میں
बहुत परेशानी होती है। मैंने अभी आपसे कहा कि आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, कुछ नसीहत करना चाहेंगे, हर चीज को क्या है वो उल्टा लेंगे, हर चीज को उल्टा लेंगे। अगर बीवी का मामला ऐसा हो जाता है कि शौहर के हर मामले को वो निगेटिव ही लेती है, तो जाहिर सी बात है शौहर बहुत परेशान हो जाएगा। यही मामला जो है अगर शौहर का हो जाए कि बीवी की हर चीज को वो निगेटिव लिहाज से सोचता है, तब जो है वो उस बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाती है। मैं एक मिसाल आपको दूं, बीवी बड़ा बन संवर करके है, उसकी ख्वाहिश है कि अपने शौहर के सामने खूब बन संवर करके रहे, शौहर जो है उसकी तरफ मायल रहे, और ऐसा करना भी चाहिए, ये बीवियों का हक होता है, और बीवी को बीवी बन के ही रहना चाहिए अपने शौहर के साथ। आज हमारा मामला ये, हमारी बच्चियां और हमारी जो है बहनें बड़ी शिकायतें करती रहती है अपने शौहरों की, लेकिन मुश्किल ये होती है कि ये अपने शौहर के साथ अपने घरों में जब ये रहती है तो इनका मामला ये होता है कि बिल्कुल जो है सिंपल, जी जैसे कोई नौकरानी हो। और कहीं बाहर निकलना रहता है तो उसके बाद ऐसा 16 सिंगार करके जैसे कहीं बिजली गिराने का पूरा मुकम्मल प्लान बन चुका है और कहीं बिजली गिराने चल रही है। ये गलत चीज है। ये हमेशा क्या है, बन संवर करके किसके लिए रहना चाहिए? अपने शौहर के लिए। औरत किसके लिए बनती संवरती है? अपने शौहर के लिए बनती संवरती है, दूसरों के लिए नहीं। अभी मामला उल्टा हो गया है, हमेशा औरत दूसरों के लिए बनती संवरती है, अपने शौहर के लिए। गलत चीज है ये। अब ये क्या हुआ, अब मान लीजिए किसी औरत ने खूब बन संवर करके अपने शौहर का हो इंतजार कर रही है कि मेरा शौहर आज ऑफिस से आएगा, काम से आएगा, तो मैं बड़े अच्छे अंदाज से उसका घर में इस्तकबाल करूंगी, उसे वेलकम करूंगी, बन संवर करके इसके लिए तैयार है घर में। अब शौहर ने कभी पहले ऐसे देखा तो नहीं था, वो अचानक घर में आया और देखा तो ये क्या, आज तो बिल्कुल ही दुनिया ही बदली हुई है। तो अब पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला शौहर क्या समझेगा मेरे भाइयों? वो ये समझेगा कि चलो मेरी बीवी माशाअल्लाह अब समझदार हो गई है, अब इसको पता लग गया है कि ये बनना संवरना अपने शौहर के लिए होता है, और घर में औरत घर की मलिका बन करके रहती है। जब वो अपने शौहर को ऊंचा मकाम देती है तो याद रखिए वो खुद घर की मलिका बन जाती है। जो अपने शौहर को पांव की जूती समझती हो, अपना नौकर समझती हो, तो खुद एक लौंडी बन के रह जाती है। यही मामला होता है। तो अब शौहर को बड़ी खुशी होगी अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि माशाअल्लाह मेरी बीवी तो अब अच्छा जो है मेरे साथ बिहेव कर रही है, मेरे लिए बन संवर करके, हाँ पूरे तरीके से अट्रैक्शन अभी उसके पास है, मेरा दिल उसको देख करके उसकी तरफ मायल होता है, बड़ा खुशी महसूस करेगा। लेकिन अगर निगेटिव थिंकिंग है तो क्या होगा? निगेटिव थिंकिंग में आते ही देखते ही इतना बन संवर करके, अरे किसके लिए बनी संवरी है ये, क्योंकि कभी उसके लिए अब तक बनी संवरी नहीं थी, किसके लिए? जरूर कोई ना कोई इसका यार आया रहा होगा। ये निगेटिव थी, ये चीज है, जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा, मेरे आने से पहले यहाँ जरूर कुछ जो है गुल खिलाया गया होगा, कुछ न कुछ हुआ है। वो मन ही मन में ये सोच रख करके अपनी बीवी से इस तरह से बदसर रहेगा। बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों के साथ जिंदगी। यही मामला जो है बीवी का। शौहर जो कुछ भी अच्छा करने जाता है, अच्छा करने जाता है तो उसको हमेशा किसके ऊपर? निगेटिव जो है पॉइंट। एक
مثال इसके बारे में जो है पेश करते हैं। मैं आपको चाहूंगा कि सुनाऊं ये जो, हालांकि अगरचे कि एक लतीफा है ये लेकिन वो मिसाल पेश करने में कोई हरज नहीं है। कि एक शौहर है, अपने बीवी खाना पकाती है और खाता है, लेकिन बीवी की तारीफ नहीं करता है खाने पे। जबकि होना ये चाहिए कि शौहर खाना खाता है तो बीवी की छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उसकी तारीफ करे उसके सामने। यहाँ तक कि झूठी तारीफ करना भी इस्लाम ने जायज करार दिया। ऐसे मौके पर आप जानते हैं हदीस इसको कि जो है शौहर अपनी बीवी के साथ झूठ बोल सकता है, तो कौन सा झूठ है? इसी तरह का झूठ होता है। वो लेन देन का झूठ नहीं है, वो जायज नहीं है। ये जो है सिर्फ क्या है, तारीफ करनी है, क्योंकि इससे भी एक दूसरे का दिल जीता जाता है, हौसला अफजाई होती है एक दूसरे की जो है। तो ये तारीफ करना होता है। खाना चाहे कैसा भी बना हुआ हो, लेकिन जब बीवी बड़ी मेहनत करके बड़ी मेहनत करती है एक औरत, मेरे भाइयों, खाना बनाने में, याद रखिएगा, बड़ी मेहनत करती है बेचारी, और मेहनत करके खाना बना करके दस्तरखान पे ला के सजाई है, और अपने शौहर और बच्चों को खाना पेश कर रही है। अब शौहर जो है तारीफ के दो बोल बोल देता है मेरे भाइयों, तो उसकी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है और उसका दिल खुशी से झूम उठता है। लेकिन इतनी सब मेहनत करने के बावजूद अगर शौहर उसमें कुछ कीड़े निकाले, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, क्या बनाती हो, कैसा क्या बनाती हो, कैसे बनाती हो, क्या करती हो, क्या बना दिया ये। बेचारी पहले से इतनी मेहनत करके आई, और ये जो अंदाज होता है ये इतना गलत अंदाज होता है। कभी कभी बच्चे भी इस तरह से अपनी माओ के साथ कर देते हैं, जो बहुत गलत चीज है। उससे जो है तकलीफ दिल की बहुत बढ़ जाती है। याद रखिए, बहुत हर्ट होती है एक खातून जो है ना, एक औरत बहुत हर्ट होती है इससे, इस तरह के सेंटेंसेस सुनती है तो। इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के बारे में, कि खाना कभी बहुत खराब होता है तब भी जो है वो बड़ी खामोशी के साथ तारीफ किए जाते हैं और खाए जाते हैं। अरे माशाअल्लाह बेगम, आज आपने क्या खाना बनाया है, मेरा तो दिल चाहता है कि उन उंगलियों को चाट लूं जो ये खाना बनाई है। ये तारीफ जो है करता है। कभी बाद लोगों ने लिखा है कि ऐसी झूठी तारीफ करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन क्या है, शौहर को ये सब चीजें करनी पड़ती है, जायज करार दिया गया है, ये करना चाहिए उसे, ताकि बीवी जो इतनी मेहनत करती है, इतना परेशान होती है इन चीजों के लिए, वो हर्ट ना हो। ये तरीका हमको सिखाया गया। मैं अभी आपको कह रहा था निगेटिव थिंकिंग वाली, असल में वो मिसाल देनी है तो उसके लिए। तो अब एक शख्स है, वो कभी अपने जो है बीवी के खाने की तारीफ करता ही नहीं था, बल्कि कभी कभी खामियां और कमियां तो बयान करता था, और बीवी भी इसकी वजह से बड़ी नाराज रहती थी। तो किसी ने उसको समझाया कि नहीं, तुम गलत करते हो, जाओ तो अपनी बीवी की खूब झूठी तारीफ किया करो और उसके खाने की खूब तारीफ करो। देखो फिर वो खुशी खुशी कैसे जो है तुम्हारे ऊपर प्यार लुटाती है, और कैसे खुशी खुशी और जो है नई नई तरह तरह की डिशें बना करके तुम्हें खिलाती है। देखो उसके बाद अब वो शख्स, अच्छा तो मैं अब आज ऐसा करूंगा। वो आया खाने के लिए, जब उसे पता नहीं था कि उस दिन पड़ोस में कुछ प्रोग्राम वगैरह था, तो खाना पड़ोस से आया था। खाना जो है बीवी ने रखा दस्तरखान पर, तो शौहर तो यही समझ रहा था कि शायद हमारी बीवी ने ही खाना बनाया। जो तारीफ करनी शुरू की अपनी बीवी की, तो बेगम इतना नाराज हुई, इतना नाराज हुई, कहा कि इतने दिनों से मैं जो है अपना सब कुछ जला करके खाना बना करके पेश कर रही थी, तो जबान से एक लफ्ज भी नहीं फूटा तारीफ का, और आज पड़ोस से खाना आया है तो आज उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। अब उस बेचारे को क्या पता, ये
अब ये निगेटिव थिंकिंग होती है, गोया कि अब मेरे शौहर का यहाँ से कुछ कनेक्शन है, ये निगेटिव थिंकिंग। नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होती तो क्या होता, अब शौहर को तो पता नहीं कि कहाँ से आया हुआ, तो वो समझती कि चलो मेरी ही तारीफ कर रहा है, वो समझता है कि मैंने ही बनाया है, कोई मसला नहीं हो। तो आप जानते ही हैं आजकल जो है इस तरह की चीजें भी आपने बारहा देखी भी होगी, सुनी भी होगी, कि जब किसी लड़की के रिश्ते के लिए आते हैं लोग, तो लड़की कुछ नहीं पकाए रहती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये सब कुछ फलां ने बनाया, जरा ये चखिए, ये फलां ने बनाया, सारी झूठी बातें होती है ताकि ये पता लगे कि कितनी सुघड़ है और कितना जो है खाने बनाने वगैरह की कितनी महारत है, उसको ये करने के लिए पेश करते हैं। ये सारी चीजें हो जाती है, करते हैं आखिर जो है। तो इस मौके पर औरत खामोश रह सकती थी कि चलो भाई, वो ये समझ करके तारीफ कर रहा है कि मैंने ही खाना बनाया है, तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो ये होना चाहिए मेरे भाई, ये पता लगा लें कि पॉजिटिव थिंकिंग, इसका पता लगाए। अब जाहिर सी बात है, अब ये सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा कि ये माथे पर तो लिखा नहीं रहेगा, पेशानी पर तो लिखा नहीं रहेगा ना कि ये जो है पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी या निगेटिव थिंकिंग, इनकी सोच मुस्बत है या इनकी सोच मनफी है, ये कोई लिखा हुआ तो नहीं रहेगा। जी हाँ, उनके साथ रहने वाले, जिंदगी गुजारने वाले जो लोग भी हैं, उनके बारे में उनसे जो है मालूमात की जा सकती है ये। और बाज मर्तबा सवाल जवाब से भी ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। फिर भी अगर मालूम हो जाए तो कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मालूम कर ले पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी या जो है निगेटिव थिंकिंग है। नहीं मालूम हुआ कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे कहा कोई मसला नहीं है, अगर पहले से मालूम हो जाए तो ये अच्छी बात है। नहीं मालूम हुआ, शादी के लिए आगे बढ़ गए और जो है शादी हो गई, तो अब जो है गुजर बसर करने में कुछ चीजों को नजरअंदाज करके जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक और बात जो है, अब ये एक सिफत हो गई आपको, ये पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग, ये शोहर के अंदर भी, लड़के के अंदर भी ये चीज देखनी चाहिए और लड़की के अंदर भी ये चीज देखनी चाहिए। एक और चीज होती है, वो ये है जो बड़ी अहम है शादीशुदा जिंदगी के लिए, और खुश खुर्रम शादीशुदा जिंदगी के लिए बड़ी अहम चीज है, वो है शुक्रगुजारी का जज्बा। शुक्रगुजारी, एक होता है नाशुक्री और शुक्रगुजारी। ये नाशुक्री का मामला, ये चीज भी इंसान की ये आदत होती है असल में। बाज लोग बड़े नाशुक्रे होते हैं और बाज लोग बड़े ही शुक्रगुजार होते हैं। एक तो अल्लाह ताला के हुकूक की बात है कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं या नाशुक्रे हैं, और एक होता है इंसानों के दरमियान जो है शुक्रगुजारी और नाशुक्र। अब जब शादी हो जाती है तो लड़का और लड़की, ये जब दोनों एक साथ जिंदगी बसर करेंगे, तो इस सिफत का बड़ा अहम रोल होता है। यानी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो है हैप्पी मैरिज लाइफ में, बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल है, याद रखिए। अगर तबीयत में शुक्रगुजारी है तो क्या होता है, औरत जो उसको मिलता है उस पर कनात करती है, सटिस्फाई रहती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अपने शौहर की शुक्रगुजार होती है। ये मामला शौहर का भी होता है, मैं दोनों तरफ बात करता हूँ, यानी किसी एक तरफ नहीं करता। शौहर जो है अगर शुक्रगुजार होता है तो अपनी जो उसकी जो है मैरिज लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ जो है ना, उस पर कनात करता है, सेटिस्फाई रहता है और अपनी गाड़ी को जो है आगे, शादीशुदा जिंदगी की जो है इस गाड़ी को आगे लेकर के चलता रहता है बड़ी शुक्रगुजारी के साथ कि अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन अगर नाशुक्रापन है तो क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि कभी भी याद रखिए, मैरिज लाइफ कभी भी
आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं होगी, जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। कितना भी आप कुछ कर जाइए, अच्छे से अच्छा इंतजाम करने की कोशिश कीजिए, अगर लड़की के अंदर नाशुक्रापन है तो अपनी उस जिंदगी पर वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि नाशुक्रापन है। उसी पर शुक्रगुजारी के साथ रहे, आगे बढ़े, ये अच्छी बात होती। यही मामला जो है शौहर का भी हो सकता है कि बीवी कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, मेहनत कर ले, और कितना भी अच्छे से अच्छा बन करके पेश करने की कोशिश करे, लेकिन शौहर उससे सैटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि नाशुक्रापन अगर है तो ये चीज होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तरीके से औरतों को ये नसीहत क्यों करते हैं? आपने एक बड़ी मशहूर हदीस सुनी होगी, औरतों को आप खास तरीके से ये नसीहत करते हैं शौहरों की शुक्रगुजारी के ताल्लुक से। आप ये नसीहत, आजकल क्या होता है, हम लोग जो है, जो वेस्टर्न कल्चर का हमारी जिंदगी पे असर हो गया, उसकी वजह से हम जो है, ये जो है थैंक यू बोलने को, थैंक यू बोलने को, अरे एक आदमी गोया कि थैंक बोलता है, थैंक यू बोलता है, थैंक यू बोल दिया तो समझ लीजिए कि लोग क्या समझते हैं कि माशा अल्लाह आप बड़ा शुक्रगुजार, हाँ थैंक बोलो। नहीं मेरे भाइयों, ये जो हम शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं ना, ये जबान से थैंक बोलने को जो है शुक्रगुजारी नहीं, या आजकल जो है हम अरबी में लोगों को जो सिखा दे रहे हैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये जबान से कहने का, ये अच्छा, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसका ही मतलब शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता है, असल में शुक्र जो है इंसान के अपने अमल से होता है। जब दिल में शुक्र के जज्बात होते हैं तो सिर्फ जबान ही नहीं मेरे भाइयों, ये हमारा पूरा जिस्म, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब शुक्र गुजारी के इस जज्बे में आने चाहिए। तो शुक्र गुजारी हर चीज से होती है, मुआमलात से होती है, हमारे अपने जो है बिहेवियर से होती है शुक्रगुजारी। उससे पता चलता है कि शुक्रगुजारी का ये जज्बा है। लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहरन सुम्मा रअत मिनका शयअन फमाज़ा तक़ूल तक़ूल मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु। ये होती है असल नाशुक्री मेरे भाई और बहनों। क्या मतलब है इसका उर्दू में? आपने कहा, औरतों के ताल्लुक से ये बात आपने कही कि अगर आप एक जमाने तक भी उनके साथ खैर करते रहे, भलाई करते रहे, हर तरह का आपने उनके साथ उनकी जो है खुशियों का ख्याल रखा, उनकी जरूरतों का ख्याल रखा, सब कुछ किया अपना उनके लिए, लेकिन किसी एक मामले में कहीं थोड़ी सी कोई चूक हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो क्या कह देंगे, आपसे तो हमने कभी खैर देखा ही नहीं, अब तक जो किया सब पर पानी फेर दिया, ये नाशुक्री है ये। और इससे सामने वाले को बड़ी तकलीफ होती है जब ये सेंटेंस होता है। थैंक थैंक बोलना ये शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि अगर जब कोई ऐसा मौका आता है तो उस वक्त अपने आप को काबू में रखना होता है और अपनी जबान से ऐसी कोई बात कह देना, अपने अमल से ऐसी कोई बात जाहिर कर देना जिससे नाशुक्री की बू आती हो, नाशुक्री की जो है जाहिर हो रही हो, तो ये मना है, ऐसी नाशुक्री कभी नहीं करना। तो बाज लोगों की नाशुक्री करने की आदत होती, सारी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं, अब तक जो है उनके साथ किया गया, जितना भी जो है किया गया सब नजरअंदाज, एक किसी मामले को लेकर के सब पर पानी फिर गया। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपको ये सेंटेंस जो है, क्या होता है आजकल बच्चे भी कहते हैं अपने वालिदैन से, आपने हमारे लिए करा ही क्या है, किया ही क्या है?
सोचिए जरा, ये नाशुक्रेपन की इंतहा नहीं तो क्या है। ये अगर जो है शौहर बीवी से कहे या बीवी शौहर से कहे, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आप करते ही क्या है मेरे लिए, बड़ी अजीब बात है ये। जी हाँ मेरे भाइयों, और ये सेंटेंस ऐसा है जो बहुत तकलीफ पहुंचाता है। क्या मतलब, इसे नहीं, सुनने वाला इससे बहुत हर्ट होता है, इससे जिंदगी मुतासिर होती है। एक और सिफत आज आपके सामने पेश करता हूं। एक सिफत है शिकायतें करने की सिफत। शिकायतें करने की सिफत, लड़का या लड़की जो में ये भी मालूम हो जाता है कि आदमी का मिजाज ऐसा है, हमेशा शिकायत ही करता है, हमेशा शिकायत। क्या है शिकायत करने का मिजाज, क्या है? बाज लोगों का बड़ा शिकायत करने का मिजाज होता है। ये नहीं सोचते हैं कि हमें इस तरह की शिकायत इनके सामने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये हमारे घर के नहीं है, इनका हमारे फैमिली मेंबर नहीं है, ये अजनबी होते हैं। तो जिनका शिकायतों का मिजाज होता है वो अपनी कभी गलती नहीं देखते। इनकी एक बड़ी परेशानी क्या होती है कि वो अपन को अपनी गलती नजर ही नहीं आती है। हमेशा हर मामले में गलतियां दूसरों की, और शिकायत का दफ्तर खोले बैठे हैं। किसी से भी बातचीत शुरू हुई, जहां थोड़ी सी अपनायत का एहसास हुआ, शिकायतों का दफ्तर खोल के बैठ गए। अरे मेरे बाप तो ऐसे हैं, और जो है बीवी है तो मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये करता है, ये करता है, शिकायतों के दफ्तर खोल के बैठ गए। ऐसी तबीयत जिनकी होती है, याद रखिए, उनके साथ आप खुश और खुर्रम जिंदगी बसर नहीं कर सकते। और ऐसी तबीयत वाली औरत को तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप उनको तलाक दे दो, हटाओ उनको, वरना हमेशा परेशान रहोगे जिंदगी में, कभी जो है खुश और खुर्रम जिंदगी नहीं बसर हो। आपको मशहूर वाकया याद होगा, ये जो है खैर शादी के बाद की बात है, मैं अब बाद में इस तरह की चीज हो, उससे बेहतर क्या है कि पहले अगर मालूम कर सकते हैं तो तबीयत का मालूम कीजिए। मैं शुरू से ये बात इस पर काफी जोर दे रहा हूं कि तबीयत कैसी है इंसान की, ये मालूम करें, ये इसकी बड़ी अहमियत है शादीशुदा जिंदगी में। एक तबीयत शिकायत वाली होती है, कहीं भी है, देखें कि आप कहीं काम करते हैं, अगर कंपनी में आप एक जो है 20-25 जो है आदमी आपके यहाँ जो है कंपनी में काम कर रहे हैं मसलन, तो देखेंगे कि एक दो ऐसे होते हैं उसमें से जिनका क्या होता है मामला, छोटी छोटी बातें जाकर के बस शिकायत करते रहते। कभी जो है साथ में जो कलीग हैं उनसे शिकायत, कभी जो है जाकर के मैनेजर जो है उससे शिकायत, कभी मैनेजर की शिकायत इनके सामने, कभी इनका उनके सामने, ये करना वो करना, बस यही काम रहता है, वो मिजाज होता है उनका। इसी तरह से औरतों में भी इस तरह का मिजाज होता है। तो ये जो चीज होती है शिकायत करने का जो मिजाज होता है, बाज लोगों का बड़ा अच्छा मिजाज होता है, कभी वो किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं करते। वो देखते हैं बहुत सारी कमियां, खामियां, गलतियां, सब कुछ है। अगर किसी के अंदर कोई खामी है, कोई गलती है, तो क्या करना चाहिए भाई, ठीक है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर लो ना, उनकी गलती की इस्लाह करना चाहते हो तो उनसे कहो कि भाई आपके अंदर ये गलती है, आप ये गलत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आदमी जो है इस्लाह भी कर ले, लेकिन नहीं, दूसरों के सामने उसे पेश करना, जबान जाकर के दूसरों के सामने खुलती है। घर की बात आप कभी भी दूसरों के सामने कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इनकी तबीयत सही नहीं है, और इसकी वजह से परेशानी रहेगी जिंदगी में। छोटी छोटी बात कभी आपके घर में हो गया, भाई छोटी मोटी बातें जो है हर घर में होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई घर इससे पाक रहता है, याद रखिए, कोई घर इससे पाक नहीं। छोटी मोटी चीजें जो है घर में रहती हैं,
اور شادی شدہ زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر طبیعت صحیح نہیں ہے تو کیا ہے، اس کو جا کر کے وہاں پیش کرنا، وہاں پیش کرنا. میں ابھی جہاں پہ رہتا ہوں، میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے رہا ہوں. حالانکہ وہ شخص غیر مسلم تھا، لیکن وہ بات بڑی پتے کی تھی. میں نے جو ہے وہ مثال پیش کر رہا ہوں. تو ایک بلڈنگ میں کام مزدور جو ہے وہ کام کرتا تھا. جہاں رہتا ہوں گھر کے پاس ہی قریب میں وہ بلڈنگ میں کام کر رہا تھا. تو اب وہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آ کے کام کرتے رہتے. تو وہ شخص برحال اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا کسی معاملے میں. وہیں پر میں تھا، تو اب فون پر بات کر رہا ہے، تو زور زور سے بات کر رہا ہے، تو سننے میں بھی آ جاتی ہیں باتیں. تو اپنی بیوی کو یہ بات جو ہے ڈانٹ رہا تھا اس معاملے میں کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان تھی، وہ بات تم نے اپنی بہن سے کیوں کہی؟ وہاں جا کر کے کہنے کی ضرورت کیا تھی تم کو اس بات؟ تو شوہر جو ہے، وہ لڑکا جو ہے، اس سے بڑا ہرٹ ہوا کہ بھائی ہمارے گھر کی بات ہے، یہ آپس کی بات ہے. آپس کی یہ بات جا کر کے اپنی بہن، اپنے جو ہے باپ، اپنی ماں، اپنے فلاں ان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو بالکل جب آخری حد ہوتی ہے کہ گزارے کی کوئی شکل نہیں ہے اب، تو اس وقت جو ہے اگر کوئی باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، تو کہ بھئی ہم کیوں جو ہے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ذکر کرو الگ مسئلہ، تاکہ اس کو رکھ کر کے سامنے جو ہے اصلاح کی کوشش کی جائے. لیکن یہ طبیعت جب ہوتی ہے شکایت والی نا، تو جہاں کوئی بات ہوئی، پیٹ میں چوہے دوڑتے رہتے ہیں. جب تک جو ہے وہ شکایت نہیں لگا دیں گے تب تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. وہ شکایت کرنے کی طبیعت ہوتی ہے. یہ ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایسے یہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مزاج کا جو ہے کہ ہاں ایسا مزاج ہے. تو ایسا انتخاب میں اس کی بھی کوشش کیجیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی طبیعت ہے تو پھر نہیں. وہ چاہے جو ہے دوسری چیزیں بہت اچھی ہیں، پھر بھی جو ہے، کیونکہ زندگی گزارنے میں ایسی عورتوں کے ساتھ یا ایسے مردوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہم جب ساتھ میں کام کرتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو میرا تو نہیں بنتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں صرف شادی شدہ زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو نہیں ہوتا ہے. سامنے کچھ نہیں کہتے، وہ پیٹ پیچھے جا کر کے جو ہے یہاں شکایت، وہاں شکایت، یہ وہ دنیا بھر کی شکایتیں جو یہ، حالانکہ وہ شکایتیں بھی سب جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ شکایتیں بھی نہیں رہتی. تو میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ پیش کر دوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آتے ہیں. بیٹے یہیں مکے میں رہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام یہیں شادی بھی ان کی ہوتی ہے. تو اپنے جو ہے وہ جو شام کا سیریا جو فلسطین وغیرہ کا ایریا، وہاں پر جو ہے وہ رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آئے ملنے کے لیے، گھر پہ گئے تو بیٹا موجود نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. پوچھا عورت سے، عورت کو پتا نہیں تھا کہ یہ میرے سسر ہے. ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے شوہر کہاں ہے؟ تو کہا وہ شکار پر گئے تھے، کیونکہ ان کا گزر بسر جو ہے شکار کر کے شکار کا گوشت کھاتے تھے یہ لوگ. تو کہا شکار پر گئے ہوئے، مطلب باہر گئے ہوئے تھے کام کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ روزی روٹی ان لوگوں کی وہی تھی. پھر پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، ان کی بیوی سے، کہ یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے، کیا حالت ہے آپ لوگوں کی؟ تو کہا ارے ہم تو بہت پریشانی میں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. پورا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی. یہ شخص اجنبی ہے اس عورت کے لیے. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ میرے سسر ہیں، میرے جو ہے شوہر کے باپ. اگر پتا ہوتا تو کبھی نہیں کہتے. یہ ایسے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے، یاد رکھنا. ایسے لوگ شکایتیں ہمیشہ اجنبی لوگوں سے کرتے ہیں. جو بالکل خاص لوگوں کے ان سے تو کریں گے نہیں، کیونکہ پتہ لگ جائے گا نا. ابھی جو ہے وہ خاص لوگ جو بیان کر دیں گے تو پکڑے جائیں گے. ابھی
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसने बड़ी शिकायतें की अपने घर की जिंदगी के ताल्लुक से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उस खातून से कि तुम्हारे शौहर आए ना तो मेरा सलाम कह देना और ये कहना कि अपने घर की चौखट को बदल दो। इब्राहीम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूछा, उनको कुछ महसूस हुआ कि कोई आया था। वो होता है बाप बेटे का जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक की वजह से एक एहसास सा था कि शायद जो है बाप जो है मेरे आए। तो औरत ने कहा हाँ जो है आए थे एक आदमी, उनकी शक्ल ऐसी ऐसी थी। पुलिया पूरा बयान किया तो समझ गया कि मेरे बाप जो है आए हुए थे। फिर कहा उनसे कि कुछ बातचीत हुई उनसे, क्या कहा तुमसे? कहा कि हाँ हाँ जो है बातचीत हुई, आपके बारे में पूछ रहे थे और जाते जाते ये कह करके गए हैं कि अपने घर की चौखट को बदल देना। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तब कहा कि वो मेरे बाप थे और वो मुझसे ये कह करके गए हैं कि मैं तुमको तलाक दे दूं, क्योंकि घर की चौखट को बदलने का मतलब ये है कि अपनी बीवी को बदल, अपनी बीवी को, इसको छोड़ो, ये तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी इसकी नहीं हो सकती। जिसको शिकायतें लगाने का चस्का होता है ना, वो कभी अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। ये था मसला। ये देखिए जो है वो मैं बात आपको कहना चाह रहा था। उन्होंने तलाक दे दिया उसको, फिर दूसरी औरत से निकाह किया। जब दूसरी औरत से निकाह किया, फिर एक मर्तबा आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उस मौके पर भी नहीं थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और आए घर में हालत हल पूछा जब उनसे कि कैसा चल रहा है तुम्हारा, कहा बहुत अच्छे। हालांकि सेम जो है लाइफ थी, यानी सेम जिंदगी थी, कोई जो है अलग से कुछ कुछ ऐसा नहीं था कि इनके साथ कुछ नया किया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, इसलिए जो है इनकी शिकायतें दूर हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनकी जो जिंदगी थी वैसे ही थी। वो एक नबी थे, जाहिर सी बात है कि नबी से बढ़कर अपनी बीवियों का ख्याल करने वाला कौन हो सकता है। इन्होंने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा है, शुक्र गुजारी। बजाय शिकायतों का दफ्तर खोलने के शुक्र गुजारी का जज्बा बयान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। कहा जब तुम्हारे शौहर वापस आ जाएं तो उनको मेरा सलाम कहना और साथ में ये भी कहना कि अपने घर की चौखट को बाकी रखें, साबित रखें। फिर वही मसला हुआ, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा उन्होंने, तो पूछने पर इन्होंने कहा कि हाँ एक साहब आए थे और उन्होंने ये बातें जो है मुझसे पूछी और मैंने सब बताया, आपका पूछ रहे थे सारी जो है चीजें, और ये आखिर में कह करके गए हैं कि अपने घर की चौखट को बाकी रखो। कहा कि वो मेरे वालिद थे और घर की चौखट तुम हो, ये कह करके मुझे गए हैं कि ये बीवी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है और बड़ी शुक्रगुजार बीवी है। ऐसी बीवियां होनी चाहिए, ऐसी बीवियों का इंतखाब जो घर के हालात को किसी और के सामने न पेश करे। कभी जो है खामखा घर की जो चीजें ना घर में रहनी चाहिए। मैं जो आप में से शादीशुदा लोग हैं उनसे भी ये बात जो है एक तरह से उनके लिए भी ये जो है दर्स हो गया है कि भाई घर की चीजें कभी छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, उसको घर के अंदर ही रहने, बाहर के किसी आदमी के सामने उसका जिक्र मत करो, चाहे वो आपका कितना ही करीबी, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, उसके सामने जिक्र करने की जरूरत क्या है। ये कभी मत समझिएगा कि बाहर के लोग आपके खैर खा हो सकते हैं, कभी नहीं होते। वो तो चटखारे लेकर के इसको और बयान करेंगे, लोगों में इसे और आम करेंगे, पेश करते रहेंगे।
उनको तो और खुशी होगी, वो आपके सामने शायद दर्द और जाहिर भी कर दें, तब भी क्या है अंदर अंदर दिल उनका, चलो माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है जिंदगी इनकी बर्बाद चल रही है। लोग आपकी बर्बादियों पर शादियाने बजाने को तैयार रहेंगे, आपका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता। आपको खुद अपने आप को समझना होता है, अपने हालात को समझना होता है, अपने हालात को सही करना होता है। घर में कुछ मसला है तो उसे घर के अंदर हल करने की कोशिश होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये असल मसला होता है। बहरहाल ये चंद सिफात हमने आपके सामने पेश की आज के इस दर्स में। अब नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह, यानी आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह आपके सामने एक नया टॉपिक होगा। अब ये तो बात हो गई कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कौन सी सिफात उसके अंदर आपको देखना चाहिए, और उन सिफात को देख करके ही उसे प्रपोज करें तो बेहतर है आपके लिए, ताकि आपकी जो है मैरिज लाइफ हैप्पी जो है बसर हो। तो ये सब चीजें जो है हमने आपके सामने पेश कर दी है। अब उसके बाद जब पैगाम दिया, तो पैगाम के बाद जो है एक होता है एक मसला, जो है पैगाम के ताल्लुक से कुछ जो है मंगनी वगैरह के मसाइल हैं, उसको देखने वगैरह के मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से अब एक नया टॉपिक आपके सामने यही इसी से ताल्लुक से आएगा, कि उसके बाद ये देखने दिखाने का जो सिलसिला है प्रपोज करने के बाद, वो किस हद तक होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, सही तरीका क्या है। आज जो हमारे समाज और सोसाइटी में जो देखने और दिखाने का तरीका पाया जाता है, ये किस हद तक सही है, देखने के अलावा क्या बातचीत कर सकते हैं, क्या उनसे जो है कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या है, क्या चीज जायज है, क्या चीज जायज नहीं है, किस हद तक उनके साथ जो है उनको देख सकते हैं, कितना हिस्सा देखना जायज है और क्या जायज नहीं है, देखने की शक्लें क्या हो सकती हैं, ये सारे मसाइल अब इंशाअल्लाह आगे के दर्स में आपके सामने आएंगे। आज चूंकि वक्त हो चुका है, जो आज का दर्स हम यहीं पर खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।